Harbhajan, it's of course the big match, India versus Pakistan, 15th of February. So much has happened when we talk about this match, the twists and turns from the Pakistan cricket board. What do you think about what has happened and now that you look forward to this marquee clash? Well, whatever happened, that is gone. Of course, there were a lot of hurdles, before this game, whether this game will happen or not. But all that is done. Now the focus should be on the cricket, which is the main part. Of course, I'm hoping that India will play well in this game, even though Pakistan is also a very strong team, especially in these conditions, in bigger grounds, and with their spinners bowling really well. So I think it's going to be a great game to watch, and of course, hopefully, India plays well and make us all proud. And Harbhajan, there's been so much talk about Usman Tariq. Do you think he could trouble India, or do you think the Indian team is very, very well prepared for him? See, he's someone that I have seen him bowl in one of the tournament in Dubai, ILT20, where he was pick of the bowler for me. Where whenever he got the opportunity to play in the semi-final and the final, he was man of the match, picking up wickets for his team. He's different than the other spinners, and of course, he's got a lot of variation. It's just not stopping, and what he brings onto the table is he's got a lot of variation. People are talking about he's just standing and delivering. It's not easy. Anybody can stand and bowl, but you got to have different variation, which he's got. And of course, he's hard to hit, and especially in bigger grounds, he'll be even more harder on slower pitches. So all I want to say that be a little bit mindful when you are playing against someone that you have never faced before. And if India can manage to tackle him and not give him any kind of big wicket, so I think India have got the team, can definitely defeat Pakistan with a lot of match winners in Indian side. And it's good to see Abhishek is also coming back, who plays spins really well, and he kind of dominate throughout his inning. So India is ready for sure, so is Pakistan. So it's going to be a great game to watch, and I'm hoping that Team India continue to play well and hopefully make us all proud. बजुबा एशिया कप में हमने देखा था इंडिया का जो एक कॉम्बिनेशन था, जहाँ पे 4 स्पिनर्स खेल रहे थे और डोमिनेट किया हमने वो तीनों मैचेस। क्या लगता है कोलंबो के कंडीशंस को देख के, जहाँ पे 180 190 एक अच्छा स्कोर बताया जा रहा है, कि इंडिया इस मैच के लिए पर्टिकुलरली फिर से वही कॉम्बिनेशन, 2 ऑलराउंडर अक्षर वॉशी साथ साथ वरुण और कुलदीप के साथ जाना चाहिए? देखिए, टीम क्या सोच रही है उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में टीम जाएगी, 3 स्पिनर खेलेंगे या 4 खेलेंगे। बट एक चीज़ ज़रूर है कि जो पीछे मैच हुए, उसमें ऑफ कोर्स पहले गेम में भारत थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर हुआ था। यूएस ने अच्छी गेंदबाजी करी वहाँ पे, और भारत को एक समय पे फंसाया था। बट एक न एक खिलाड़ी को ऐसा निकल के आता है, उस दिन सूर्या चमके और बहुत ज़बरदस्त वो पारी रही, और ऐसी ही पारी आपको चाहिए थी किसी से, और स्पेशली कप्तान से, जब टीम नीचे लगी हुई हो। और वो मैच जीता भारत, बहुत अच्छे तरीके से जीता इन दी एंड। और दूसरा गेम डोमिनेट किया। ऑफ कोर्स नमीबिया इज़ नॉट दैट बिग ए थ्रेट और दैट बिग ए टीम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, बट वो विनिंग स्ट्रीक इज़ इम्पॉर्टेंट। वो जिस तरीके से मैच जीत के आए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन खेलेगा ये तो पिच के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि 4 स्पिनर खेलने हैं या 3 खेलने हैं। बट आई फील टीम इंडिया इज़ रेडी, इन एवरी सेंस दे हैव गॉट मैच विनर्स। तो मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं कि दे ऑल प्ले टू देयर पोटेंशियल एंड कंटिन्यू टू मेक अस ऑल प्राउड। बजुबा, आपने अभिषेक शर्मा को काफ़ी टाइम से देखा है, आपके पंजाब से ही आते हैं, और मतलब जिस तरह से T20 में बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, एक अभिषेक को क्या खास बनाता है, एज अ पावर हिटर क्या खास बनाता है उनको? और दूसरा, अभी हाल फिलहाल में मोहम्मद आमिर ने उनको कहा है कि लप्पेबाज है और कुछ भी नहीं है, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन? नहीं, मेरा रिएक्शन, मैं देखिए किसी की टिप्पणी के ऊपर मैं क्या रिएक्शन दूंगा। अभिषेक क्वालिटी खिलाड़ी है, और एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने दम पे मैच जिताने का मादा रखता है, और एक बार नहीं बार बार वो कर सकता है वो काम। थोड़ी बहुत जो क्रिकेट मैं खेला हूँ, जानता हूँ कि वो एक प्रॉपर बल्लेबाज है, जिसके पास सारे वो शॉट्स हैं जो बहुत सारे बल्लेबाजों के पास नहीं होते हैं। तो लप्पेबाज वो होता है जिसके पास सिर्फ बॉल देखी और घुमाई और लगी तो ठीक, नहीं लगी तो भी ठीक। वो वैसा नहीं है। इसकी तो पहली बॉल लगती है, और उसके बाद जब तक ये क्रीज पे रहता है तो लगती ही रहती हैं। तो इसलिए ही इज़ ए प्रॉपर बैट्समैन। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, क्योंकि शायद मेरे लिहाज से तो उन्होंने
जब ऐसे बल्लेबाज के सामने कभी बॉलिंग जो है मुझे लगता है करी नहीं है, तो ये टिप्पणी बिल्कुल ही गलत है कि वो लप्पेबाज है। लप्पेबाज की अगर मैं परिभाषा दूंगा तो फिर बहुत लोगों को ना चिढ़ मचेगी वहाँ पे, तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है कि हम उस लेवल पे वो कुछ बोले और हम बार बार रिएक्ट करे जाएं। वो मुझे करना नहीं है, क्योंकि वो शायद वही चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें। बट एनीवेज मैं तो कहता हूँ भी, अभिषेक कल दिखा फिर एक बार जलवा जो पहले दिखाया था, और दिखा भाई क्या कर सकता है अभिषेक। और बहुत उम्मीद है अभिषेक से, और अगर लंबी पारी वो खेलते हैं तो टीम इंडिया बहुत लंबा स्कोर खड़ा करेगी। बहुत इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले आपने भी खेले हैं, प्रेशर अलग रहता है दूसरे गेम्स के मुकाबले, ये हर कोई कहता है। लेकिन फिलहाल जो कंडीशंस हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, पीसीबी ने जो इतना सारा कुछ किया, और हैंडशेक एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी एशिया कप में, क्या आपको लगता है कि हैंडशेक जो है वो होना चाहिए या होगा? आपका क्या व्यू? सी दैट इज़ इंटायरली प्लेयर्स विश। अगर उनको लगता है करना है करें, नहीं करना है मत करें, क्योंकि ये कहीं किसी किताब में तो लिखा नहीं है कि मैच के बाद हैंडशेक होना चाहिए या गले मिलना है। आजकल तो आप ड्रेसिंग रूमों में भी घुस जाते हो, तो ये कहाँ लिखा हुआ था। तो आप मैच खेलिए, दम से खेलिए, दम लगाइए वहाँ पे, वहाँ तक मैटर करता है। बट उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है कि हाथ मिलाना चाहिए या गले मिलना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, लोग तो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं एक दूसरे के। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड, और वो एशेज़ के बाद एक मैच के बाद इकट्ठे बैठते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर अभी ये सारी चीज़ें जो है अब पीछे रख देनी चाहिए, और क्रिकेट को क्रिकेट की तरीके से देखना चाहिए। मुझे अगर बात करें इंडियन टीम की भी, तो आपने श्रीलंका में भी, आर प्रेमदासा में भी काफ़ी मुकाबले खेले हैं, देखे हैं, कमेंट्री की है। कैसा विकेट उम्मीद करनी चाहिए, कैसी विकेट होगी, कॉम्बिनेशन पर आपने बता दिया। लेकिन बारिश कल एक बड़ा थ्रेट भी है इस गेम में, और 2023 एशिया कप का फाइनल याद आता है मुझे, बारिश का थ्रेट था। 50 ओवर मैच था, लेकिन 7 बजे तक सिराज भाई ने सारे विकेट लेकर जो है वो जीत हासिल कर ली थी। क्या कल स्पिनर्स पर ज्यादा दाव खेलना चाहिए पिच को देखते हुए या मौसम को देखते देखो, हुए? मैं ग्राउंड गया नहीं हूँ, आई डोंट नो कि पिच कैसी है। अगर थोड़ा बहुत उस पर ग्रास है तो वहाँ पे सीमर भी काम आएंगे आपके। और ये मैदान बड़ा है, ये बाकी मैदानों से ये मैदान बड़ा है, और यहाँ पे पिच अक्सर बल्लेबाजों के लिए अच्छी रहती है। आपने जो एसएससी की पिच देखी है, जहाँ पे बॉल थोड़ा स्पिन भी हो रहा है, नीचे भी रह रहा है, वो ये उस तरीके की पिच नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी उससे पिच आपको बेहतर मिलेगी। और इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो ये सब चाहेंगे, क्यूरेटर भी चाहेंगे कि रन बने, और उम्मीद करते हैं कि वो एक ऐसी पिच हो जो जिसमें बल्लेबाजों का भी बल्ला बोले, और थोड़ी बहुत वहाँ मदद जो है वो फास्ट बॉलर और स्पिनर के लिए भी हो। तो बैट और बॉल की लड़ाई होनी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कल ग्राउंड में जाके पिच का जब निर्णय करेंगे, देखेंगे, तब मैं बता सकता हूँ कि कौन से खिलाड़ी या क्या 11 होनी चाहिए। बट अब आई एम श्योर जब टीम मैनेजमेंट वहाँ पे गई होगी, उन्होंने तो आज डिसाइड कर लिया होगा कि क्या टीम खेलेगी। इसके अलावा बजुबा, एक्स फैक्टर आप इस मुकाबले में और पूरे वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के लिए किसे देखते हैं? मैं एक नाम नहीं ले सकता हूँ। उस दिन देखिए हार्दिक पांड्या, ही वॉज अनबिलीवेबल। ईशान किशन वॉज ब्रिलियंट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभिषेक विल कम इन द गेम। और बड़ी गेम में हमेशा हम देखते हैं कि अभिषेक ऑलवेज स्कोर रन्स। और सूर्य कुमार यादव उस दिन फैक्टर थे। बुमराह हमेशा फैक्टर है, रहेंगे। और वरुण चक्रवर्ती अपने आप में बहुत बड़े फैक्टर हैं। तो इट्स सो गुड टू हैव सो मेनी फैक्टर्स working for India, and a lot of people are performing at the same time, and it's good to see कि एक या दो बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिता रहे हैं टीम को। And Harbhajan, just final question, I guess. Just want you to elaborate a little on Ishan Kishan, coming from where he came, he took a break, then he performed in domestic cricket, now he's in the World Cup team and he's scoring runs, seems like he's in the form of his life. So this opportunity... Hopefully this is just a start, for Ishan Kishan. Of course, this is his second inning, and of course he's playing better than before. There's no doubt, if once you get out of the team, you kind of realize, what all are you missing when you're sitting at home. To make a comeback from where he was, a lot of people felt that Ishan Kishan is done, but it's never done if you think right. So, well done to Ishan Kishan for putting the right foot, in front, and working hard on his game, on his mental strength, and making a great comeback, not just for himself. It's a story for all the youngsters also to
look, it's not done, when people said you are done. So continue to work hard. There's a lot of things you can achieve. Don't just sit and relax. This is not the time for them to relax. They are in their young age. So I'm very happy for Ishan Kishan and his family and his friends who stood by him, when he was going through a rough patch. And so glad to see such performers coming, and not just coming, winning game for Team India. That's more important.